السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سواگت ہے آپ کا۔ ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ پاکستانی ڈرامہ کے بارے میں جس کا نام ہے کفارہ۔ یہ ڈرامہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس میں کریکٹرز اور مین رولز بہت ہی اچھے طریقے سے ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اس کا پروڈکشن لیول بہت ہی ٹاپ نوچ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کفارہ کی کہانی انتہائی کمپلنگ ہے۔ ڈرامہ کی سینٹرل تھیم ہی گلٹ اور ریڈیمپشنز۔ کیا انسان اپنی گناہوں کی کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ سٹوری میں آپ کو بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرنز ملیں گے جو آپ کو لاسٹ تک انگیج رکھیں گے۔ کریکٹرز کے تھرو ڈرامہ ایسے اہم سوال۔ اب اگر ہم کریکٹرز کی بات کریں تو لیڈ رولز میں السلام مین علیکم کریکٹر ہے دوستو، ہمارے آج کی اس سپر ویڈیو ہیرو میں سواگت جس ہے نے آپ کا۔ کمال ہم کر دی بات ہے۔ کرنے والے ہیں ہر ایک سین بہت میں ہی ان کی دلچسپ پاکستانی پرفارمنس ڈرامہ آؤٹ کے بارے اسٹینڈنگ ہے۔ میں جس سپورٹنگ کا نام ہے کاسٹ بھی کفارہ۔ یہ اپنی ڈرامہ اپنی بھی جگہ بہت ہی دلچسپ اسٹرانگ ہے، بہت پرفارمنس دیتی ہوئی خوبصورت ہے۔ نظر آ اس رہی میں ہے۔ کریکٹرز ڈرامہ اور کی مین ڈائریکشن رولز کی اگر بہت ہی بات اچھے کی جائے طریقے سے ایکٹنگ تو کر رہے ہیں۔ اس کا ڈائریکٹرز پروڈکشن لیول نے بہت ہی بہت ہی ٹاپ اچھی نوچ طرح سے ہے۔ سٹوری کو تو ہینڈل چلیے کیا شروع ہے۔ کرتے ہر ہیں۔ سین کے ویژولز اپیل کفارہ کی بہت ہی کہانی امپریسو ہیں۔ انتہائی کمپلنگ ہے۔ ڈرامہ کی سینٹرل تھیم ہی گلٹ اور ریڈیمپشنز۔ کیا انسان اپنی گناہوں کی کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ سٹوری میں آپ کو بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرنز ملیں گے جو آپ کو لاسٹ تک انگیج رکھیں گے۔ کریکٹرز کے تھرو ڈرامہ ایسے اہم سوال۔ اب اگر ہم کریکٹرز کی بات کریں تو لیڈ رولز میں مین کریکٹر ہے ہمارے سپر ہیرو جس نے کمال کر دی ہے۔ آج ہر کی اس سین ویڈیو میں میں ان کی سواگت ہے آپ کا۔ پرفارمنس ہم آؤٹ بات اسٹینڈنگ کرنے ہے۔ والے ہیں ایک سپورٹنگ بہت کاسٹ ہی بھی دلچسپ اپنی پاکستانی اپنی ڈرامہ کے جگہ بارے میں اسٹرانگ جس کا نام پرفارمنس ہے دیتی ہوئی کفارہ۔ یہ نظر آ ڈرامہ رہی بھی ہے۔ بہت ہی ڈرامہ کی دلچسپ ہے، ڈائریکشن بہت کی اگر خوبصورت بات ہے۔ کی جائے اس میں تو کریکٹرز اور ڈائریکٹرز مین رولز بہت ہی ڈائریکٹرز اچھے نے طریقے بہت سے ہی اچھی ایکٹنگ کر طرح سے رہے ہیں۔ سٹوری اس کو کا ہینڈل پروڈکشن کیا ہے۔ لیول ہر سین بہت کے ہی ٹاپ ویژولز نوچ ہے۔ اپیل بہت تو چلیے امپریسو شروع ہیں۔ کرتے ہیں۔ کفارہ کی کہانی انتہائی کمپلنگ ہے۔ ڈرامہ کی سینٹرل تھیم ہی گلٹ اور ریڈیمپشنز۔ کیا انسان اپنی گناہوں کی کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ سٹوری میں آپ کو بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرنز ملیں گے جو آپ کو لاسٹ تک انگیج رکھیں گے۔ السلام علیکم دوستو، کریکٹرز کے آج تھرو کی اس ویڈیو ڈرامہ میں ایسے سواگت ہے آپ اہم کا۔ ہم سوال۔ بات کرنے والے ہیں اب ایک اگر ہم بہت ہی کریکٹرز کی دلچسپ بات پاکستانی کریں ڈرامہ تو کے بارے لیڈ میں رولز میں جس کا مین نام ہے کریکٹر ہے کفارہ۔ یہ ہمارے ڈرامہ بھی سپر بہت ہی ہیرو دلچسپ ہے، جس نے بہت کمال کر خوبصورت دی ہے۔ ہے۔ اس میں ہر سین کریکٹرز میں اور ان کی مین رولز پرفارمنس بہت آؤٹ ہی اچھے اسٹینڈنگ طریقے ہے۔ سے ایکٹنگ سپورٹنگ کر رہے ہیں۔ کاسٹ اس بھی کا اپنی پروڈکشن اپنی لیول جگہ بہت ہی ٹاپ اسٹرانگ نوچ ہے۔ پرفارمنس دیتی تو ہوئی چلیے نظر آ شروع رہی کرتے ہے۔ ہیں۔ ڈرامہ کی ڈائریکشن کی کفارہ کی اگر بات کی کہانی جائے انتہائی تو کمپلنگ ہے۔ ڈائریکٹرز ڈرامہ نے بہت ہی اچھی طرح سے سٹوری کو ہینڈل تھیم ہی کیا ہے۔ گلٹ ہر اور سین کے ریڈیمپشنز۔ ویژولز اپیل کیا بہت امپریسو انسان ہیں۔ اپنی گناہوں کی کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ سٹوری میں آپ کو بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرنز ملیں گے جو آپ کو لاسٹ تک انگیج رکھیں گے۔ کریکٹرز کے تھرو ڈرامہ ایسے اہم سوال۔ اب اگر ہم کریکٹرز کی بات کریں تو لیڈ رولز میں مین کریکٹر ہے ہمارے سپر ہیرو جس نے کمال کر دی ہے۔ ہر سین میں ان کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ سپورٹنگ کاسٹ بھی اپنی اپنی جگہ اسٹرانگ پرفارمنس دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ڈرامہ کی ڈائریکشن کی اگر بات کی جائے تو ڈائریکٹرز نے بہت ہی اچھی طرح سے سٹوری کو ہینڈل کیا ہے۔ ہر سین کے ویژولز اپیل بہت امپریسو ہیں۔ جی بھائی اوپر والے فلور پر بہت دکھ ہوا منا صاحب، دل بھر آپ کا ساتھی۔ کیا ہوا سر؟ رحمت اندر ہے؟ جی ہاں، پر آپ کو اجازت نہیں۔ چلو لگے گا کوئی 4-5 دن مجھے بولنا، میں لے کے جاؤں گا تجھے دلبر کے پاس۔ جس نے مارا اس کا نام بتا دے تو موت تیری بینڈنگ میں ڈال دوں گا رحمت۔ بس آ کے میں نے ان سے کہ مجھے دلبر کے پاس لے جا۔ اس کے سامنے مت جانا، مار ڈالے گا۔ جان بچانی ہے تو ڈھونڈ کر منا کو مار دو، ورنہ وہ دلبر کے قاتلوں کو چن چن کر مارے گا۔ دلبر کی باڈی سے میرا کوئی تعلق نہیں، آپ پہ یقین ہے مجھے۔ پٹی پیٹ آج میں قاتل پکڑے جائیں گے وزیر مہمان، اور رات کو ایک پیر کی جنازے کی پڑی ہے۔ بس ٹھیک ہے، آ رہا ہوں۔
देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूंगा, और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियां मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी है और वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। जरनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर तेरे ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा। इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मरवाया है और ना ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मरवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर है जो दोनों जड़े इसी के ऊपर आके रखती हैं कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो जरना बहुत ज्यादा रोती है। वो जब मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से जरनाब को खतरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा वो दिलबर के कातिलों को वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर की पास गई थी, मैं देख के आई हूँ उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा।
ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूंगा, और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियां मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी है और वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। जरनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर मैंने ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा। इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मरवाया है और ना ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मरवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर है जो दोनों जड़े इसी के ऊपर आके रखती है कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो जरना बहुत ज्यादा रोती है। वो जब मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से जरनाब को खतरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा वो दिलबर के कातिलों को वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर की पास गई थी, मैं देख के आई हूँ उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा।
ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूंगा, और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियां मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी है और वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है, तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। जरनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर भी ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा। इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मरवाया है और न ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मरवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर है जो दोनों जड़े इसी के ऊपर आके रखती है कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो जरना बहुत ज्यादा रोती है। वो जब मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से जरनाब को खतरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा वो दिलबर के कातिलों को वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर की पास गई थी, मैं देख के आई हूँ उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। ड्रामा सीरियल
जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूंगा, और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4 गोलियां मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी है और वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। जरनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर तेरे ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा। इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मरवाया है और न ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मरवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर है जो दोनों जड़े इसी के ऊपर आके रखती हैं कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो जरना बहुत ज्यादा रोती है। वो जब मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से जरनाब को खतरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा वो दिलबर के कातिलों को वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर की पास गई थी, मैं देख के आई हूँ उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसीलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है और ये भी जानता है
कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूंगा। और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियां मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी है और वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। जरनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर तेरे ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा। इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मरवाया है और ना ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मरवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर है जो दोनों जड़े इसी के ऊपर आके रखती हैं कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो जरना बहुत ज्यादा रोती है। वो जब मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से जरनाब को खतरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा वो दिलबर के कातिलों को वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर की पास गई थी, मैं देख के आई हूँ उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है
तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूंगा। और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियां मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी है और वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है, तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है, तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। जरनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर तेरे ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा। इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मरवाया है और ना ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मरवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर है जो दोनों जड़े इसी के ऊपर आके रखती है कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो जरना बहुत ज्यादा रोती है। वो जब मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से जरनाब को खतरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा वो दिलबर के कातिलों को वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं, तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर की पास गई थी, मैं देख के आई हूँ उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ उस हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसीलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है
तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूंगा। और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियां मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी है और वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है, तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है, तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। जरनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर तेरे ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा, इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है, ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मरवाया है, और ना ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मरवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर है जो दोनों जड़े इसी के ऊपर आके रखती है कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो जरना बहुत ज्यादा रोती है। वो जब मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से जरनाब को खतरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा वो दिलबर के कातिलों को वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं, तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर की पास गई थी, मैं देख के आई हूँ, उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसीलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
तभी इकबाल मुन्ना कहता है, अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूंगा, और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियां मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी है और वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है, तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच अस्सलाम जाती है। वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में, इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक अंगेज रखेंगे। करेक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे